حصہ ہم نے پچھلی کلاس میں چھوڑ دیا تھا، آج اسی موضوع پر، اسی عنوان پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک نئے پوائنٹ پر ہم بات کریں گے۔ ہمارا عنوان کیا تھا جی؟ خدا میں قائم رہنا۔ اچھا، خدا میں قائم ہم کب رہ سکتے ہیں یا کیسے رہ سکتے ہیں؟ خدا میں قائم رہنے کا کیا سلیقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مرکزی آیت پڑھیے گا، ایوب کی کتاب، اس کا 24واں باب، اس کی 23ویں آیت مبارکہ۔ ہاں، کسے ملا ہے؟ ہاں، جلدی سے، شاباش۔ یہ ریفرنس ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کیا ہے کہ پڑھا جی، 24 باب، اس کی 23ویں آیت۔ جلدی سے جی۔ خدا انہیں امن بخشتا ہے، خدا انہیں امن بخشتا ہے، اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں۔ آمین آمین۔ ابھی یاد رکھے، خدا ہمیں بار بار یہ نصیحت اور تربیت کرتا ہے کہ تم مجھ میں کیا رہو؟ قائم رہو۔ پچھلی مرتبہ ہم نے قائم رہنے کے تعلق سے نگاہ پر غور کی تھی۔ کس پر غور کی تھی؟ نگاہ پر غور کی تھی، اپنی آنکھوں پر غور کی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر کے خدا میں قائم رہ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی زبان پر غور کریں گے، اپنے ہونٹوں پر غور کریں گے۔ کس پر غور کریں گے جی؟ اپنے ہونٹوں پر غور کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ کے ہونٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا، تو آپ خدا میں قائم نہیں رہ سکتے۔ آپ وہ پاکیزگی کا لبادہ جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پائیں گے اگر زبان اور ہونٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 5ویں آیت پڑھیے گا صرف۔ کلام خدا یوں فرماتا ہے، جی، جس سال میں عزریہ بادشاہ نے 5ویں آیت پڑھیے گا، یہ پہلی آیت ہے۔ 5 جی۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میرے ہونٹ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الالفاظ کو دیکھا۔ آمین۔ اب یاد رکھیں، نبی ہے، ماں کی کوکھ میں سے ہی یہ خدا کا نذیر ہے، خدا کا قدوس ہے، اور خدا نے اسے کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے۔ اس حالت کے اندر بھی نبی کیا فرماتا ہے کہ میرے ہونٹ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ ایک پنجابی دا محاورہ ہے، کوئی ایک بندہ سی نا، وہ رات ساری دعا کرتا رہا، تو جدو قبولیت دا وقت آیا نا، تو انہیں شراب دے 2 گھٹ لا دیا، تو ساری رات کی محنت جیڑی ہے نا، وہ کی ہوا؟ ضائع ہو گئی۔ کیونکہ اس نے اپنے ہونٹوں کا کیا کر لیا؟ ناپاک کر لیا۔ آج یہی عالم میرا اور آپ کا ہے، بہت سی روح زندگیوں جانوں کا یہی عالم ہے۔ ہم بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے فکر مند ہو کر
खुदा से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी उस रूहानी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं तो हम अपने होठों को क्या करते हैं, नापाक कर लेते हैं। इसलिए याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बुजुर्ग हिसाया फरमाते हैं कि मेरे होंठ क्या हैं, नापाक हैं। लेकिन हमारी तरफ जो है ना वो ज़रा उल्टा सिस्टम है। हमारी तरफ क्या है जी, उल्टा सिस्टम है। हाँ जी, क्या है जी, ज़रा ऊंची दिले ना, क्या है, उल्टा सिस्टम है। ज़रा मुख्तलिफ सी हसी सबसे अलग है। सबसे अलग है। माँ बाप कहता है कि पादरी साहब मेरा बच्चा जो है ना वो दिल का बड़ा अच्छा है जी मेरी बेटी जो है ना दिल की बड़ी अच्छी है जी। मुंह दी बड़ बोली बस मुंह दी बड़ बोली बोली दिल चे कुछ नहीं जे। लेकिन याद रखे यसु मसीह ने बात कही है, अच्छा खजाना अपने अंदर से हाँ जी जी क्या निकालता है, अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा खजाना अपने अंदर से क्या निकालता है, बुरी चीजें निकालता है। माँ प्यो कहना नहीं जी पादरी साहब बहुत अच्छे ने, बस मुंह दे कीए ओदे अंदर गंदगी है तो ओदे मुंह ते भी कीए गंदगी है। और अगर उसके अंदर अच्छी चीजें हों तो वो अच्छी चीजें ही उसके मुंह पर भी आएंगी। आमीन। इसलिए याद रखें, बुजुर्ग हिसाया फरमाते हैं कि मेरे होंठ क्या हैं, नापाक हैं। वो नबी होकर ये कह रहा है असी केड़े बाग दी मूलियां। ठीक है। अच्छा, 3 तरह के लोग आज पाए जाते हैं इस मुआशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर। कितने किस्म के? अच्छा, गौर आपने ज़रा तवज्जो करनी है इस बात पर। कितनी किस्म के लोग हैं? 3 किस्म के। अच्छा, पहली किस्म वो है जिन्हें जो खुद साख्ता ईमानदार होते हैं। क्या होते हैं? खुद साख्ता ईमानदार होते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको किसी खादिम की या बिशप की पर्सनैलिटी और उनकी इज्जत को देख के मुतासिर होते हैं कि बाबा पादरी साहब जो भी आते हैं इन्हों की बाबा इज्जत की जाती है, इन्हों बाबा प्यार किया जाता है, बाबा एप्रीशिएट किया जाता है इन्हों। और वो लोग जो होते हैं उनको बड़ा शौक होता है टाई पहनने का, चौकों में बाजारों में सलाम लेने का, उनको बड़ा शौक होता है। और वो क्या बन जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खादमीनों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें बिगाड़ कहाँ होता है? क्योंकि खादिम जब उसे अपने साथ लेकर चाहता है कि आप भाई विजिट लिए, वो विजिट लिए चले जाता है, उन्होंने उत्थे पै जाता फिर चस्का चावां दा है, उन्होंने उत्थे पै जाता चस्का चावां दा। वो कहता पादरी साहब ना तो हुण मैं बड़ियां चावां पी लियां ते हुण जरा आप ही चावां पी के देखी। पादरी साहब ने तो हुण मैं बड़ियां चावां पी लियां, हुण मैं आप ही जरा ना चावां पी के देखा। फिर खुद साख्ता वो क्या बन जाता है, ईमानदार बन जाता है। और एक जगह में हम बैठे थे, वहाँ पर एक शख्स आया, उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि आप कौन सी वजारत के साथ हैं या आप किस डिनोमिनेशन के साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मैं आज़ाद हाँ, मैं कहा वाह, जिन्हें तेनू पाया वो भी आज़ाद ही है। जे तू आज़ाद है ना तो जिन्हें तेनू पाया है वो भी आज़ाद ही है। इसलिए याद रखें, पहली कैटेगरी क्या है, खुद साख्ता ईमानदार, अपने होठों से ईमानदार बनने की कोशिश। अच्छा, दूसरी वो कैटेगरी है जिनको लोग खड़ा कर देते हैं, जिनको लोग खड़ा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो
पढ़ा लिखा भी है और चाचे मामे ताए पुफियां दे घर भी आले दुआले ने, फिर वो की करते ने कि वो अच्छा इधर बाजी इधर जरा इधर मुतवज्जो, वो क्या करते हैं कि वो अपने लिए क्या करते हैं कि इंतखाब करना शुरू कर देते हैं कि ए मुंडा बाबा जोर ना दुआ भी करदा है ते ए पादरियां ना नहीं रहा वे ते असी ते दुआ ही करनी है ये जमा करी हो जी, हैं, असी की करनी है, दुआ ही करनी। दुआ ही करनी है। अच्छा फिर वो लोग जो होते हैं ना वो हकीकी खादमों की रिस्पेक्ट करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि सीखा नहीं होता, पता नहीं होता, और इस बात से वो क्या हो जाते हैं, फिर नावाकिफ हो जाते हैं। अच्छा तीसरे कैटेगरी वो है जिनका चुनाव खुद खुदा करता है, जिनका चुनाव खुद खुदा करता है, जिनका चुनाव खुद खुदा करता है। जैसे कि मूसा और हारून, मूसा और हारून इनका चुनाव किसने किया? खुदा ने। कैसे किया? कैसे किया खुदा ने चुनाव इनका? कोई जानता है? मूसा का चुनाव कैसे हुआ? खुदा ने उसे बचाया था फिरौन के घर में रखकर। ठीक है, आगे उसे मखसूस कब कैसे किया? उसे मुकर्रर कब किया? उसका चुनाव कब किया? जब वो मिस्र से भागा और मुकद्दस पहाड़ पर गया, और मुकद्दस पहाड़ पर गया, खुदा उससे हम कलाम हुआ, खुदा ने उसका चुनाव किया, खुदा ने उससे कलाम किया। और जब खुदा ने उससे कलाम किया, याद रखें जब खुदा किसी से कलाम करता है ना, वो चाहकर भी भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकता। मूसा ने कहा कि मेरी तो जुबान में क्या है, हाँ हाँ ठीक है, पंजाबी तोतला हूँ, मेरी जुबान में लुगत है, मेरी जुबान में क्या है, मैं बोल नहीं सकता। खुदा ने जब खुदा किसी का चुनाव करता है, खुदा उसकी कमजोरी में भी उसके लिए दूसरों का चुनाव करता है। हालेलुया हालेलुया। और फिर खुदा ने किसका चुनाव किया? हारून का चुनाव किया। और हारून जो है वो मूसा की जुबान बना, मूसा के होंठ बना, और जो कुछ हारून बयान करता वो सब कुछ जो है कि वो फिर आगे डिलीवर करता अकॉर्डिंग, वो सब कुछ फिर आगे डिलीवर करता। इसलिए याद रखें 3 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन से थे? खुद साख्ता ईमानदार, हाँ, दूसरा वो जिनका खुदा चुनाव करे, तीसरा ये है, दूसरा वो जिनको एवं लोग चुक दे देने। हाँ जी, ठीक है। आज हमने जरा गौर करना है कि हमारे होंठ किस दिशा में इस्तेमाल हो रहे हैं, हम अपने होंठों को किस तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल हम काम कर रहे हैं या आज़ादियाँ? हाँ? तो जे आज़ाद हो ना तो फिर यकीन मनो आज़ाद ही है, ठीक है। इसलिए हम आज़ाद नहीं है, हमारा एक चरवाहा है और उसका नाम क्या है? यीशु अल मसीह। आमीन हालेलुया। अच्छा दूसरी बात नोट कीजिएगा, आप क्या सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। आप क्या सुनते हैं? मसीह में या खुदा में कायम होने के लिए हम क्या सुनते हैं? हमारा चुनाव क्या है? हम रोजमर्रा जिंदगी में क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमारे सुनने की ताकत है और किस तरह से हम नई चीज़ों को या नए तौर पर हम सुनते हैं। अगर हम महज दुनिया और मुआशरती बातों पर ही
कान लगाते हैं तो याद रखें हम मसीह में कायम हो नहीं सकते। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕਾਇਮ नहीं हो सकते। हाँ, अगर हम अच्छा सुनते हैं, मैंने कहा कि आपके सुनने पर आपका असर अंदाज है। आप क्या सुनते हैं? बुरा सुनेंगे तो उसके नताइज भी क्या हैं? बुरे होंगे। बुरे होंगे। और अगर अच्छा सुनते हैं तो उसके नताइज भी अच्छे होंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि यीशु मसीह के पीछे एक शख्स था जो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ मालिक, ऐ खुदावंद, मेरा बच्चा जो है वो क्या है? मर गया है। अगर तू चलकर उस पर दुआ करे तो वो चंगा हो जाएगा, बच जाएगा, जिंदा हो जाएगा। उतनी ही देर में लोग उस शख्स के पास आकर क्या कहने लगे? उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरा बच्चा क्या है? मर चुका है। क्या सुनते हैं आप? क्या सुनते हैं? लोग जो देख रहे थे, जो सुन रहे थे, उसी पर यकीन कर रहे थे। लेकिन वो शख्स ये जानता था कि जिस मुन्नजी के पीछे मैं चल पड़ा हूं, ये मुर्दे को भी जिंदा करने की कुव्वत। हालेलुया, जिंदगी है। हालेलुया। इसलिए आप क्या सुनते हैं ये आप पर डिपेंड है। बाइबल मुकद्दस में एक और हमें वाकया मिलता है उस औरत का जो 12 बरस से एक बीमारी के अंदर मुब्तला थी। जी। अब बाइबल हमें सिखाती है कि उसने कहीं से ये सुन रखा था कि इस्राएल के अंदर, बनी इस्राएल के अंदर एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है, वो जिस पर हाथ रखे वो शिफा और सलामती पाता है। और उसने ये सुन रखा था। और उसे शिफा कैसे मिली? उसके सुनने की सबब से, उसके सुनने के सबब से। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, तो याद रखें मेरे अजीजों, आपके घर के बंधन खुदा तोड़ेगा। हालेलुया। आमीन। खुदा तोड़ेगा, आपको रन खुदा करेगा, आपको बेहतर खुदा करेगा। लेकिन मसला ये है कि हमने कभी भी खुदा को बेस्ट नहीं दिया। हम खुदा को बेस्ट देना जानते ही नहीं है जी। हम हमेशा खुदा को दूसरी या तीसरी या चौथी तरजीहात पर रखते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए खुदा हमसे बेस्ट मांगता है, खुदा हमसे बेस्ट चाहता है। आप अपनी जिंदगी का जब बेस्ट हिस्सा खुदा को देंगे ना, तो खुदा आपको भी बेस्ट हिस्सा देना शुरू कर देगा। आमीन। आमीन। आइए अपने स्वरों को हालेलुया।